Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. I am going to start subject science, class 7th, chapter 1st, and this is my fourth part of this chapter. On my earlier part, I have already explained mode of nutrition in plants, photosynthesis process, what do you understand by the cell, what is stomata, some activities I just already have discussed with you, and then synthesis of plant food other than carbohydrates, other modes of nutrition in plants, and what do you understand by the insectivores plants. These all the things we have already studied in our earlier video. So today come on your next topic, and that is saprotrophs. Okay, here 1.4 on the 1.4 saprotrophs. You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable. आप मार्केट में मशरूम्स के पैकेट्स को बिकते हुए देखते हो मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में आपने देखे होंगे मशरूम्स के पैकेट्स मिलते हैं. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और ऑन रूटिंग बोर्ड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. आपने कभी कभी कुछ अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर्स भी देखे होंगे जो कि नमी वाली बोट्स पर ग्रो कर जाते हैं, सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं. So let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. तो हमको ये find out करना है कि वो survive करने के लिए उनको कौन से nutrients की ज़रूरत होती है और वो कहाँ से ये nutrients gain करते हैं. Okay? You have seen some umbrella-like structures on rainy time on the board and the soil. So you just have to find out that from where they get nutrients, है ना, for living or for survive. Now come on your next point, that is activity number 1.2. Take a piece of bread and moisten it with butter. आप एक ब्रेड का पीस लोगे और उसको मॉइस्ट करोगे, यानी थोड़ा सा नमी गीला करोगे. Leave it in a moist warm place for 2-3 days और until fluffy patches appear on them. आप क्या करोगे, गर्म थोड़ी सी नमी वाली जगह में जहाँ गर्मी और नमी हो, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पर आपको 2 to 3 days के लिए ये ब्रेड को छोड़ देना है. देन आप देखोगे कुछ फ्लफी पैचेस, यानी कुछ फ्लफी से कुछ सॉफ्ट से और लाइक वेलवेट स्ट्रक्चर्स आपको उसके ऊपर दिखाई देंगे. वॉट इज़ द कलर ऑफ दीज पैचेस? इन पैचेस का कलर क्या है? ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास. आप इन पैचेस की स्टडी करोगे अंडर अ माइक्रोस्कोप के द्वारा, ठीक है, और मैग्नीफाइंग और या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करके. राइट ऑन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक. देन यू हैव टू राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन योर नोटबुक. यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड्स ऑन द पीस ऑफ ब्रेड. आपको कुछ कॉटन लाइक कुछ वेलवेटी स्ट्रक्चर्स यू जस्ट फील ऑन द अपर पार्ट ऑन द पीस ऑफ दैट ब्रेड, है ना. So you just have to do this activity at your home. So try this activity. Look on these pictures. Here one piece of bread and here some floppy structures on that bread we are seeing here. So these organisms are called fungi. इन organisms को हम क्या कहेंगे? fungi या fungus हम इन organisms को कहते हैं. They have a different mode of nutrition. इनमें क्या है, न्यूट्रिशंस का एक अलग मोड होता है. दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड. ये क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स को किससे गेन करते हैं? उस ब्रेड से गेन करते हैं. दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक्स in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. So here what do you understand by the saprotrophic nutritions? That plants or that organism which take their nutritions, which take their food from the decaying or dead matters. ठीक है ना, जो dead और decaying matters से अपने nutrients gain करते हैं, that organisms gain their nutrients or food from the decaying or dead matter, that is called saprotrophic nutritions. Okay, ये nutritions क्या होंगे? जो fungi, that means जो fungi है ना, fungi is a organisms, it is count as a organism. तो वो क्या करती है, that it just gain their nutritions from that bread. उस bread से अपनी nutritions gain करते हैं. So ऐसे organisms which gain their nutritions or their food from the decaying or dead matter, that is called saprotrophic nutrition. Such organism
सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सेप्रोट्रॉफिक मोड को यूज़ करके न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। लाइक ऑटोट्रॉफ्स जैसे प्लांट्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइक द सेम सेप्रोट्रॉफ्स जो कि डिकेइंग और डेड एनिमल्स से अपने न्यूट्रिशंस को गेन करते हैं। ओके, now come on the next paragraph. Fungi also grow on pickles, leathers, cloths and other articles that are left in hot or humid weather for a long day. Yes, we can see fungi everywhere. Fungi or fungus, whatever you want to say, you can say. Fungus को हम कहीं भी देख सकते हैं. You can see on the pickles, on the leather, on the cloths. ऐसी किसी भी जगह के there are very hot or very humid conditions are there. You can see these fungi or fungus everywhere. Okay. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। यस, रेनी सीजन के टाइम पे जब ह्यूमिडिटी होती है, हॉट भी होता है और ह्यूमिड होती है ना, तो ये बहुत सी सारी चीज़ों पे को स्पॉइल कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मीनेस ऑफ फंगीज इन योर हाउस। आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि फंगी कहाँ पर घर में कैसे क्यों लग जाती है और क्या होता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन wet or warm things they germinate and grow. Already I have explained you कि जैसे ही उनको एक वार्म और वेट यानी ह्यूमिड कंडीशन मिलती है, गर्म वाली कंडीशन मिलती है, वो अपने आप ही जर्मिनेट हो जाते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम द गेटिंग स्पॉइल्ड। आप क्या सोच सकते हो कि कैसे हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सो जस्ट थिंक अबाउट दैट, है ना, उसके बारे में आपको सोचना है। Some organisms live together and share, come on the next paragraph, and here some organisms live together and share both shelter and nutrients. अब कुछ organisms ऐसे भी होते हैं जो कि साथ में रहते हैं और एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। मीन्स उनके बीच एक जो टुगेदरनेस, लाइफ टुगेदर मीन्स एक साथ जीते हैं। मीन्स अगर एक दूसरे को शेल्टर देता है तो दूसरा पहले को न्यूट्रिएंट्स देता है। दिस रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड सिम्बोइसिस। इस रिलेशनशिप को हम सिम्बोइसिस कहते हैं, इन विच वन ऑर्गेनिजम्स गिविंग द शेल्टर एंड द अदर इज गिविंग न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लाइव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगीज ऐसी होती हैं जो कि रूट प्लांट्स के अंदर रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। तो जो प्लांट्स क्या करता है, वो फंगस को न्यूट्रिएंट्स देता है एंड इन रिटर्न फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और उसके बदले में भी फंगस क्या करता है, उस प्लांट को फ्रॉम द अर्थ वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं। प्लांट्स की रूट पर फंगस प्रेजेंट होती है तो प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और रिटर्न में फंगस क्या करती है, उसको भी सॉइल के थ्रू कुछ वाटर और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस एज ए न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकिन्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम लाइकिन कहते हैं। अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड। कुछ ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लाइकिन कहते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एल्गा। इनमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जिसे हम एल्गा कहते हैं, एंड फंगस लिव टुगेदर। इनमें क्या होते हैं, फंगस और एल्गा जो होते हैं वो साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस क्या करती है, एल्गा को शेल्टर प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है एंड मिनरल्स, ओके, to the alga, and in return the alga prepares and provide food to the, just because in alga chlorophyll is present, that's why it is able to prepare the food in the presence of sunlight and chlorophyll. By doing the photosynthesis process, the alga can prepare the food, so that alga prepare food and provide the food to the fungus, and fungus provide the from the soil water, minerals and shelter. Okay, now in next paragraph, how nutrients are replenished in the soil. ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में कैसे, मीन्स अगर मिट्टी से हम गेन कर रहे हैं तो वापस सॉइल में उनको पहुंचना भी तो चाहिए। अगर मिट्टी से प्लांट्स केवल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करते जाएंगे तो फिर तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे ही नहीं ना, वहाँ से उनमें लैक हो जाएगी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर हो जाएगा।
तो ये कैसे हम मतलब एक कहना चाहिए कि रेप्लिनिज्ड मीन्स कैसे सॉइल में वापस उनको कैसे सॉइल में उनकी कमी ना होने पाए, ठीक है। क्या करते हैं, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पोस्ट। आपने कभी फार्मर्स को और गार्डनर्स को अपने गार्डन्स में, अपने फार्म्स में कुछ फर्टिलाइजर्स को डालते हुए देखा है? डू यू नो वाई दिस इज़ डन? आपने देखा है वो ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व, यस, आपने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लेइंग। तो क्या होगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ प्लांट्स आर कंटिन्यूसली गेनिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल्स का क्या हो जाएगा, देयर विल बी lack of nutrients in the soil. So fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus एक्सेट्रा। तो जो हमारे फर्टिलाइजर्स या मैन्योर होते हैं उनमें बहुत ही अमाउंट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा ये सब प्रेजेंट होते हैं। सो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फॉर टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो क्या होता है, इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है टाइम टू टाइम सॉइल में ऐड करने की, और जब हम मिट्टी में इनको ऐड करते रहते हैं ना तो मिट्टी में इनकी कमी नहीं हो पाती। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी। हम प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और उन्हें हेल्दी रख सकते हैं। if we can fulfill the nutrient requirement of plants, ठीक है ना, we can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plants को हम ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं अगर हम उनकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और कैसे करेंगे, सो दैट्स वाई फार्मर्स एंड गार्डनर्स आर यूजिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स इन अ बिग अमाउंट इन द सॉइल, ठीक है ना। मिट्टी में पूरे न्यूट्रिएंट्स को एक फुलफ़िल करने के लिए ही फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर का यूज़ किया जाता है। फॉर दैट प्लांट्स कैन ग्रो ईजीली एंड वी कैन कीप द प्लांट्स हेल्दी एंड कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्लांट्स, ओके। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। ज़्यादातर जो फसलें होती हैं नाइट्रोजन को, जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, मीन्स क्रॉप्स जो फसलें होती हैं ना, वो बहुत ही अमाउंट में नाइट्रोजन को गेन करती हैं। द सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन, तो मिट्टी में क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होने लगती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो गैस होती है एक बिग अमाउंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैन्योर, दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। पर प्लांट्स क्या डायरेक्टली इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्यूबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन की जो ज़रूरत होती है वो सॉल्यूबल फॉर्म में होती है। तो सो द राइजोबियम, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग ना, कि वन बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एंड दे जस्ट कन्वर्ट दैट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and mix it with the soil, so plants can easily use that nitrogen through the soil. तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया ही होते हैं हमारे राइजोबियम, लेग्यूमिनेसेरम हम इनको कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, कैन टेक एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेते हैं और कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म, और उसको पौधों के, प्लांट्स के यूज़ करने के योग उनको बना देते हैं, ठीक है। यानी कि हियर आई जस्ट वांट टू से कि कुछ क्रॉप प्लांट्स होते हैं, दे जस्ट एब्जॉर्ब इन लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होती है, जो सॉइल में होती है वो नाइट्रोजन की जब कमी होने लगती है तो जो एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दे जस्ट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर एज अ यूजेबल फॉर्म एंड देन प्लांट्स कैन ईजीली टेक दिस नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। सो दैट बैक्टीरिया इज राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, इसको हम बोलते हैं लाइजोबियम, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। पर राइजोबियम क्या होता है, इसको अपने फूड के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो राइजोबियम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है प्लांट्स के यूज़ करने के लिए, बट खुद के यूज़ में नहीं ले सकता एज अ फूड। सो इट ऑफन लाइव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स। तो ये ज़्यादातर ऐसी क्रॉप्स मीन्स जो
जो हमारी पल्सेस होती हैं, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, इन ऐसी जो पल्सेस होती हैं उनके रूट में ये लेग्यूम्स रहते हैं। और सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट ऑफ, यस, तो ये जो राइजोबियम होते हैं वो अक्सर क्या होता है, पीस, मूंग, बीन्स, इनके रूट्स, ग्राम्स के रूट्स में रहते हैं, ठीक है। और एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड दैम विद नाइट्रोजन, और दूसरे लेग्यूम्स की रूट्स में रह करके उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, और बदले में जो प्लांट्स क्या करते हैं वो इस राइजोबियम को फूड प्रोवाइड करता है और शेल्टर, यस, इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू बैक्टीरिया, ठीक है। और रिटर्न में क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो फूड और शेल्टर इस बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, ओके। सो डू यू अंडरस्टैंड दैट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। जो राइजोबियम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर देता है, बट इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद नहीं बना सकता। सो इट्स ऑफन लिव्स इन, ये अक्सर क्या करता है, इट लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, दूसरे जो लेग्यूम्स होते हैं, जो ग्राम, पीस, मूंग और अदर लेग्यूम्स होते हैं, उनकी जड़ों में तो रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा देता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड, और बदले में जो प्लांट्स होते हैं वो फूड एंड शेल्टर गिव्स टू दैट बैक्टीरिया, वो इस बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर देते हैं। दे दस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस प्रकार से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके बीच में होता है, जिसे हम हिंदी में सामंजस्य कहते हैं, कि मीन्स एक ने एक को शेल्टर दिया तो दूसरे ने दूसरे को न्यूट्रिएंट्स दिए, तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। दिस एसोसिएशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ये जो कंडीशन होती है फार्मर्स के लिए बहुत ही सूटेबल कंडीशंस होती है फॉर ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयरएज लेग्यूमिनस, or just because of this bacteria there is less amount of need of nitrogenous fertilizers, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, just because of this leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants, ज़्यादातर दालें इस leguminous plants के थ्रू ही जो होती हैं obtain होती हैं। In this chapter you have learned that most of the plants are ऑटोट्रॉप्स, इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि ज़्यादातर प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, येस, बिकॉज दे कैन सिंथेसिस, दे कैन मेड देयर फूड देयर सेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ, by the process of photosynthesis in the presence of chlorophyll and sunlight. Only few plants are parasitic और सेप्रोट्रॉपिक, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पैरासिटिक होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं, और कुछ प्लांट्स सेप्रोट्रॉपिक होते हैं। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स से न्यूट्रिशंस गेन करते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स since they depend on plants and other animals for food. Yes, we know humans and all the animals are divided in heterotrophs category because they get their food from the other plants, and also on that animal which eat food, which gain their food also from the plants. Can we say the इंसेक्टिवर्स प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? हम क्या है, इंसेक्टिवर्स को भी क्या कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके से हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। So here we have already discussed everything in this chapter. Here I have completed this chapter and some keywords are here. Autotrophic, you just know. Autotrophic means the plants which made their food themselves by the photosynthesis process. Chlorophyll is a green color pigments. Heterotrophs, those plants or animals which gain their food by the plants or the animals हैविंग एनिमल्स विच डिपेंड ऑन द प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स से अपना फूड गेन करते हैं। होस्ट क्या होते हैं, जो कि मीन्स शेल्टर देते हैं, ठीक है, किसी प्लांट्स को शेल्टर देते हैं। इंसेक्टिवर्स, इंसेक्ट्स ईटिंग होते हैं। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और स्पेशल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, like the same nutritions are also necessary for the plants. Parasite means जो
दूसरों पर डिपेंड करते हैं, लाइक पैरासाइट मीन्स कस्कुटा, अमरबेल. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यू नो in the presence of sunlight and chlorophyll by the reaction of carbon dioxide and water, and they form carbohydrate and oxygen. Saprotrophs you have already studied. Then saprotrophic and stomata present on the leaves in small pores, है ना. Small pores are present on the stomata, है ना. So and they just surrounded by a cell. So here सेप्रोटॉप्स ऑल्सो लाइक पैरासाइट होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. नाउ रीड दिस चैप्टर केयरफुली, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट you have, then ask me and I will make your all the doubts clear. And rest of the things, exercises, we will discuss in our next video. So please subscribe this channel, and if you like, if you like my channel, this video, so please subscribe and like videos. And thank you. Have a nice day.